Good morning, everyone. This is the sum we will be doing today. A fire on 14th October 2018 destroyed the stock of Nandu and Associates. The business records were saved, and from them the following particulars were ascertained. Stock on cost on April 2017, 88,600. Stock on 1/4/2018 is 75,100. Purchases for the year up to 31/3/2018. See, fire, when did the fire took place? I'll highlight the date, 14th October 2018. And the stock, what they have given at cost, this is 1st April 2017. So this will be the last year opening stock, because current year will start from 1st April 2018. करंट ईयर ओपनिंग स्टॉक कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2018. ये 1 अप्रैल 2018 का स्टॉक लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा. करंट ईयर्स ओपनिंग स्टॉक will be the last year's closing stock, correct? Now purchases for the year up to 31/3/2018 is the last year purchase. Sales for the year up to 31st March 2018 is last year's sale, and purchases from 1st April 2018 to 14/10/2018 is the purchases from first day to the date of fire. Sales from 1/4/2018 to 14/10/2018 is sales for the year up to the date of fire. On valuing stock on 31st March 2018, when the stock was valued on 31st March 2018, that is the closing date, rupees 1200 had been written off a particular line of goods which had originally cost rupees 3,600. They say that what happened, that a particular line of goods, this is they are talking about the abnormal goods, कि उसका कितना वैल्यू कम हो गया? 1200 value, it was of 3,600, but उसका 1200 was, the value was written off. तो 3,600 का गुड्स था, उसका 1200 का वैल्यू राइट ऑफ कर दिया, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3,600 का गुड्स एंड उसका 1200 वैल्यू रिटर्न ऑफ किया, तो उसका वैल्यू होगा 3,600 minus 1200, that is 2,400. These type of goods are known as abnormal item or abnormal goods. And this abnormal item was sold in June 2018 for 3,500. तो ये जो goods है, that is of the value became from 3,600 was the cost, but cost में ही उसका 1200 का वैल्यू कम हो गया, 2,400 हो गया. तो ये गुड्स को जून में 3,500 में सेल किया. तो हम लोग जो ये अबनॉर्मल गुड्स है, अबनॉर्मल आइटम है, इसका प्रॉफिट तो रेगुलर प्रॉफिट जैसा नहीं रहेगा, पर ये सेल हो गया तो ठीक है. अगर ये हमारे पास अनसोल्ड होता तो इसके लिए अलग से प्रॉफिट वैल्यू करना पड़ता, बिकॉज द अबनॉर्मल आइटम्स आर नॉट द रेगुलर गुड्स. तो इनका प्रॉफिट रेशियो will not be similar to the rest of the goods. तो रेस्ट ऑफ द गुड्स को हम कितना परसेंटेज प्रॉफिट चार्ज करते हैं, इसको वैसे नहीं हो सकता. इसको तो हम लॉस में भी सेल कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर अबनॉर्मल आइटम्स. Except as regards to this transaction,
The ratio of gross profit had remained unchanged throughout. बोलते ये abnormal item को छोड़ के बाकी सबका gross profit ratio same था. Then salvage good था 10,210. Calculate the amount of insurance claim to be lodged with the insurance company. So now what we will have to do? We will have to calculate the claim. तो क्लेम के लिए क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज तो नहीं दिया, तो हम कैसे करेंगे? अभी तक जितना भी सम दिया था उसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया रहता था, बट इन दिस सम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज नॉट गिवन. So what we will do? We will have to find out the gross profit ratio. But how to find out the gross profit ratio? When they do not give the gross profit percentage, to calculate the gross profit ratio, some information is given. Like in this question, the last year's trading account is given. देखो last year का opening stock, करंट ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा. फिर परचेसेस अप टू 31/3/2018 लास्ट ईयर का परचेस, फिर लास्ट ईयर का सेल्स भी दिया है. तो ये इंफॉर्मेशन से वी कैन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड वी विल कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑल्सो, because in this question nothing is given about the gross profit ratio. I mean, gross profit ratio is not given, but the information to calculate it is given. So let us now start this sum in the books of Nandu and Associates. And Associates. क्या करना है हमें? We have to prepare पहले तो trading account, because gross profit ratio चाहिए. Whenever see gross profit ratio will not be given, so some other information like previous year's trading account will be given. या तो 4-5 साल का ट्रेडिंग अकाउंट दिया रहेगा तो हमें उसका रेशो निकालना रहे, उसका एवरेज निकालना पड़ेगा. 3-4 years का ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट for year ended 31st March 2018 को ये ईयर खत्म हुआ है. So let us calculate, let us prepare the column now. Particulars, rupees, सबसे पहले to opening stock. How much is the opening stock? Opening stock is, see, April 2017, 88,600, and we will write to purchases. Purchases दिया है 2 lakh. See why I am writing here, I will show you. 2,07,700. ये जो हमने परचेज किया इसमें there is a particular line of goods which are originally cost rupees 3,600. So इसमें से I will less abnormal item. Abnormal item. Abnormal item is there.
व्हाट इज द कॉस्ट? ये अबनॉर्मल आइटम को हम पूरी तरह से निकाल लेंगे बिकॉज इसका प्रॉफिट ये तो सेल हो गया, तो ये जो बाकी का जो रिमेनिंग गुड्स का जो प्रॉफिट का रिलेशनशिप रहेगा that will be different as compared to this good because they are different goods, they are abnormal goods. तो इसको तो मैं पूरा का पूरा आई विल माइनस दिस, तो हाउ मच इट इज, या तो है ना, अगर अब नॉर्मल गुड्स पूरा सेल नहीं हुआ होता तो हम अमाउंट का दो कॉलम बना सकते हैं, एक नॉर्मल गुड्स के लिए एक अबनॉर्मल गुड्स के लिए, पर यहाँ पे टेंशन नहीं है बिकॉज अबनॉर्मल गुड जो था वो सेल हो चुका है आग लगने से पहले, तो नहीं सेल होता तो उसके लिए भी वैल्यूएशन करना पड़ता, उसका भी तो वो अब नॉर्मल गुड्स भी अगर फायर में जल गया होता तो उसके लिए भी हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगते हैं कि पैसा उसका भी लेते, पर अभी जरूरत नहीं है। 2,07,700 माइनस 3,600 माइनस करो कितना आएगा, 2,04,100। तो इसके बाद सेल्स का इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय सेल्स लास्ट ईयर का कितना है, इस साल अक्टूबर 14 को देयर वाज अ फायर एंड लास्ट ईयर का सेल्स वाज 3,05,000। फिर नाउ वी विल कम टू द क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट ईयर इस साल का ओपनिंग स्टॉक विल बी द लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक। How much is the amount? 75,100. Why again here? Because इसमें included है abnormal item. Abnormal item is included. जो abnormal item है उसका जैसे in valuing stock on 31st March 2018, 31st March 2018 is the closing stock date. तो जब हमने closing stock को value किया, getting my point, on valuing stock on 31 March 2018 and 31 March 2018 is the closing stock of, this is देखो 31 March 2018, trading account is for year ended 31st March 2018. तो ये दिन का जो स्टॉक है उसमें पता चला कि 1200 had been written off of a particular line of goods which had originally cost rupees 3,600. इसका ओरिजिनल कॉस्ट 3,600 था, उसका 1,200 वैल्यू हमने कम कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, तो अब भी उसको माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू से कितना था, 2,500, sorry 2,400. The value of this goods was only 2,400. ये कैसे मिला, 3,600 minus 1,200, ये हमें 2,400 कैसे मिला, जिस गुड्स का कॉस्ट was 3,600, इस गुड्स का कॉस्ट 3,600 था, मैंने स्टार मार्क किया दैट 2,400 कैसे आया, ये ऐसे आया कि द कॉस्ट ऑफ द abnormal item was 3,600, but when we did the valuation of the stock on 31st March, we found out that the 1,200 has been written off of the particular goods which cost 3,600 originally. जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 3,600 था उसका 1,200 वैल्यू कम हो गया, तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 2,400। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना वैल्यू आएगा, 75,100 माइनस 2,400 इज हाउ मच, 75,100 minus 2,400 is 72,700, 72,700
Now what we do, now we will close this account. So हमें क्या चाहिए, कौन सा, हमें ग्रॉस प्रॉफिट, बाकी सब मिल गया, अभी क्या चाहिए हमें, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए. तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन के लिए हम क्या देखते हैं, कैसे पता ग्रॉस प्रॉफिट, बिकॉज द क्रेडिट साइड इज हैवी. बंद करते, द क्रेडिट साइड इज 3,77,700. How much is the gross profit coming? 85,000. सो ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया. अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. वी विल फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मीन्स द percentage of gross profit with comparison to sales. Gross profit ratio means the percentage of gross profit with comparison to sales. मतलब सेल्स अगर इतना है तो ग्रॉस प्रॉफिट उसका कितना परसेंटेज है. जैसे व्हेन यू स्कोर सर्टेन मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, you, your parents or your relatives, your siblings, your cousins, someone will ask you कितना percentage मिला. तो you, how will you calculate your percentage? Marks obtained divide by total marks into 100. Same way, gross profit ratio means the percentage of gross profit with comparison to sales. Sales के बदले में कितना परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज. और उसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट का जो अमाउंट है डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. you will get the gross profit percentage. You will get the gross profit percentage. तो ग्रॉस प्रॉफिट है 85,000, सेल्स है 3,05,000, into 100 करेंगे, we will get the percentage of gross profit. See कितना परसेंटेज आ रहा है, 27.87%. Is everyone getting this percentage? Check, just check whether you are getting this percentage. तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आ गया. अभी हमें यही मिसिंग था, ये क्वेश्चन में यही मिसिंग था. तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टिल द डेट ऑफ फायर. तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ताकि क्लेम फाइंड आउट करे. इन बिटवीन द ईयर हम ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मली अकाउंट्स फाइनलाइज करते वक्त प्रिपेयर करते हैं. तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for the period 1st April या 1/4/2018 to when is the fire took place. Fire took place on 14th October 2018. Fire took place on 14th October 2018. So here what we will do, we will insert the trading account. So now let us write particulars, rupees, particulars, rupees. तो यहाँ पे लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक will become the opening stock of current year. Last year closing stock is the opening stock of current year. 72,700 यहाँ से मिला. इधर का क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक becomes the opening stock of the current year.
उसके बाद वी रिक्वायर द परचेसेस. परचेसेस इज हाउ मच? परचेसेस दिया है क्वेश्चन में. परचेसेस फ्रॉम 1/4/2018 to 14/10/2018 is 74,700 is 74,700. इसके बाद बाय सेल्स. सेल्स कितना दिया है? इट इज 1,18,000. आज इस साल आग लगा फ्रॉम 1/4/2018 to 14/10/2018. सेल्स इज 1,18,000. बट मैं उसको इधर लिख रही हूँ इनर कॉलम में 1,18,000. व्हाट इज द रीजन? आई विल टेल यू. जब हमने यहाँ पे ये सेल लिखा है तो जो गुड सेल हुआ है उसमें ये अबनॉर्मल आइटम का गुड्स भी जून में 3,500 में सेल हुआ है. जो अबनॉर्मल गुड्स वाला है that is the goods which are not regular, which are not normal. Abnormal goods also has been sold in June. तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं तो ये जो 3,500 का अबनॉर्मल गुड जो सेल हुआ है उसका परसेंटेज ये परसेंट के साथ मैच नहीं करेगा क्योंकि ये तो नॉर्मल गुड्स का प्रॉफिट परसेंटेज है. ये जो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकाला 27.87%, इट इज द परसेंटेज ऑफ नॉर्मल गुड्स, गुड्स दैट आर नॉर्मली नॉर्मल, एंड उसमें इतना प्रॉफिट हम उतना प्रॉफिट हम अर्न करते हैं. लेकिन इसीलिए देखो यहाँ पे हमने अबनॉर्मल आइटम को परचेज से भी निकाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक से भी निकाल दिया, उसके बाद ये प्रॉफिट आया है. तो ये रेगुलर प्रॉफिट है, इसमें कोई भी अबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड नहीं है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेल्स है इसमें भी जो अबनॉर्मल आइटम सेल किया है उसको माइनस कर देंगे. जो अबनॉर्मल आइटम है वो हम माइनस कर देंगे. अबनॉर्मल आइटम कितने में सेल किया? अबनॉर्मल आइटम 3,500 में सेल किया. 3,500 में. तो वो सेल करने के वो जो सेल किया उसको माइनस करने के बाद हाउ मच सेल्स आर यू गेटिंग? 1,14,500. Now after this we should get the goods on the date of fire. लेकिन यहाँ पे दो चीज मिसिंग है. एक तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो हम बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली करते हैं, और यहाँ पे मिसिंग है क्लोजिंग स्टॉक. इसको हम बोल सकते हैं स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. सो ये तो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर होगा कि कितना स्टॉक था जिस दिन आग लगा. यही हमें नहीं मालूम, तो ये फाइंड आउट करना है. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाले? ऊपर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है, और यहाँ ये किसका परसेंट? ये हमेशा ये परसेंटेज सेल्स का है. ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज हमें किसके ऊपर निकालना है? सेल्स के ऊपर निकालना है. तो 1,14,500. इसलिए इसमें से हमने अबनॉर्मल आइटम निकाल दिया, बिकॉज अबनॉर्मल आइटम पे जो प्रॉफिट चार्ज किया है वो ये वाला 27.87 नहीं होगा, बिकॉज ऊपर भी हमने अबनॉर्मल आइटम को तो पहले ही लेस कर दिया था. सो नाउ जस्ट टेक द परसेंटेज हाउ मच यू आर गेटिंग. 1,14,500 में 27.87% निकालो. 114,500 में 27.87% निकालो. हाउ मच यू आर गेटिंग? 31
310. Are you getting this? 27.87% of 1,14,500. 1,14,500 का देखो ये आंसर आपको मिल रहा है 1,14,500 का हाउ मच 27.87%. So we get 31.911. We get 31.911. Correct? 31.911. तो what we will do, इसके बाद हम ये अकाउंट को बंद करेंगे. We will close this account. And how much we will get here? 1,79,311. 1,79,311. और स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना आ रहा है देखो. स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना आ रहा है? 1,79,311 minus 114,500. We are getting 64,811. 64,811. So now what we will do, we will calculate the statement of. देखो नॉर्मली ये क्वेश्चन में एक हमने चीज तुम लोग ने नोट किया, फिर ये क्वेश्चन में पॉलिसी अमाउंट वाज नॉट गिवन. ये क्वेश्चन में ये read the question but nowhere the policy amount is given. So यहाँ पे जो actual loss है वही क्लेम रहेगा because nothing is given about the policy amount. तो जितना एक्चुअल लॉस होगा उसी को हम क्लेम मानेंगे. तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम. स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बोलती हूँ मैं इसको. तो इसमें हम लोग लिखेंगे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज हाउ मच 64,811. इसमें से लेस करेंगे स्टॉक सैल्वेज्ड. सिर्फ सैल्वेज बोलोगे तो भी चलेगा, या स्टॉक सैल्वेज्ड. हाउ मच इज द स्टॉक सैल्वेज्ड? जस्ट गो एंड चेक. स्टॉक सैल्वेज इज 10,210. देखो सैल्वेज वाज 10,210. 10,210. So I will write 10,210. So this will be the claim or the actual loss. Claim बोलो या actual loss बोलो. यहाँ पे ये actual loss will be equal to claim because the policy amount is not given. Actual loss will be equal to claim. How much is it coming? कितना आ रहा है देखो 64,811 minus 10,210. It is coming 54,601 will be the claim amount, or you may say the actual loss. With this sum is done.